اب جب عربی میں ثقیل کا معنی بھاری ہوتا ہے تو دو بھاری چیزیں بولنے کے لیے ثقلین بولنا پڑتا ہے، اسی لیے غوث اعظم کو غوث الثقلین کہتے ہیں، ہے نا؟ اس ثقلین سے دو جنس مراد ہے، ایک انسان اور ایک جنات۔ سرکار غوث اعظم انسانوں جنات کے بھی غوث ہیں، اس لیے انہیں غوث الثقلین کہتے ہیں۔ توجہ حاضر کریں، یہاں ثقیل سے ثقلین ہے جس کا معنی ہوتا بھاری۔ میرے آقا فرما رہے ترکتو، میں نے چھوڑی کیا کیا؟ فیکم الثقلین، دو بھاری چیزیں۔ اولہما کتاب اللہ، ایک چیز اس میں سے اللہ کی کتاب قرآن پاک، وآخر اہل بیتی، اور دوسری چیز میری اہل بیت اطہار ہے۔ توجہ حاضر رہے، اسی محور پر بات کروں گا اور توجہ دلاؤں گا۔ ایک قرآن چھوڑی، ایک اہل بیت اطہار۔ میں عرض کر رہا تھا میرے آقا آپ نے صحابہ کی عظیم جماعت ہے، ان کے تعلق سے اس طرح کا فرمان جاری نہیں ہوا، اگر وہ بھی چھوٹ گئے تو کیا معاملہ تھا؟ اب جواب مل رہا عمر فاروق امجدی، اعتراض کی قطعی ضرورت نہیں، اور میں بھلا اس طرح کی حیثیت کہاں رکھتا؟ کائنات کی کوئی شے، کوئی شخصیت بھی یہ ہمت و حیثیت کہاں رکھ پاتی ہے جو اعتراض کرے؟ میں یہ سوالیہ نشان قائم کر کے آپ کے ذہن میں اجاگر ہونے والے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ اعتراض کا حق کسی کو نہیں ہے، یہ تو فرمان رسالت ہے، فرمان الہی اور فرمان رسالت کا درجہ یہ ہے کہ کائنات کی کوئی شے نہ اعتراض کر سکتی ہے، نہ چوچیا کر سکتی ہے، نہ اس ادھر ادھر کرنے کی کوشش کر سکتی۔ ہر ایک کو اپنا سر خم تسلیم ہے، سر تسلیم خم کر کے قبول کرنا ہوگا کہ اللہ کا فرمان ہے اور رسول اللہ کا فرمان ہے۔ مگر صحابہ کرام کو میرے آقا علیہ تحیت و ثنا اگر فرماتے تو صحابہ کرام کی جماعت میں ایک صاحب انتقال کر گئے، دوسرے صاحب کا انتقال ہوا، وہ انتقال کر گئے تو تیسرے صاحب کا ہوا، 100-200 لوگ ایک سال انتقال کر گئے، 100-200 دوسرے سال انتقال کر گئے، دھیرے دھیرے صحابہ کرام کی جماعت ختم ہو جاتی، اس لیے کہ نبی انتقال کر گئے تھے۔ ماتھے کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں رسول باوقار کی زیارت کرنے کا نام صحابیت ہے۔ اب جب رسول جلوہ فرما ہمارے بیچ نہیں ہے، پردے میں ہے، تو زیارت ماتھے کی آنکھوں سے نہیں ہو سکتی۔ اب جب نہیں ہو سکتی تو صحابیوں کا بننا بند ہو گیا۔ ظاہر ہے جب صحابی بننا بند ہو گیا ہے تو یہ بات کلیئر کٹ ہے کہ اب وہ انتقال کرتے جائیں گے تو ختم ہوتے جائیں گے۔ توجہ حاضر ہو تو غور کریے گا، مگر اہل بیت اطہار کا بننا بند نہیں ہوگا، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی اولاد میں ایک ایک بعد دیگرے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، اور جب وہ جنم لیتے رہیں گے تو وہ بڑھتے رہیں گے، وہ ختم نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے، اسی توجہ پر، اسی معاملے پر توجہ دلا کر میرے آقا نے یہ باور کرایا ہے کہ ہم قرآن چھوڑ رہے ہیں، اہل بیت اطہار چھوڑ رہے ہیں، قرآن بھی تا قیام قیامت باقی رہے گا، اہل بیت اطہار بھی تا قیام قیامت باقی رہے گا۔ اسی پر بس نہیں ہے، ایک جدی اعلان کر دے اس زمین پر بھی یہ دونوں ساتھ ہوں گے اور مجھ سے حوض کوثر پہ بھی ملاقات کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا حسین، یا حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جواب ہے حضرت سبحان اللہ۔ اب میں توجہ دلا رہا تھا کہ یہ ثقلین، لفظ ثقل جو ثقیل جو ہے یہ عربی میں بھاری کا معنی رکھتا ہے۔ آقا علیہ السلام چاہتے تو فرماتے ترکتو فیکم السمین یا سمینین۔ سمینن کا معنی عربی میں قیمتی ہوتا، قیمتی۔ فرمان جاری ہوتا میں دو قیمتی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، مگر وضاحت کر دوں، قیمتی چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ بھاری فرمایا نبی نے، قیمتی نہیں فرمایا۔ اگر قیمتی فرماتے تو جیسے 2000 کا نوٹ ہے، قیمتی ہے کہ نہیں؟ سب لوگ بولیں قیمتی ہے، مگر بھاری نہیں ہے، ہلکا اتنا ہے کہ ہاتھ پہ رکھ کے پھونک مارو تو اڑ جائے گا۔ قیمتی ہے، 2000 کا ہے، اتنی بڑی کرنسی انڈیا میں نہیں ہے۔ توجہ کریں گے، اتنی بڑی کرنسی انڈیا میں نہیں، اتنا بڑا نوٹ انڈیا میں نہیں ہے، 2000 کا نوٹ ہے، قیمتی تو ہے
मगर भारी नहीं है। भारी नहीं है तो फूंक मारने से उड़ जाएगा। या रसूलल्लाह, आपने अहले बैते अतहार को कीमती क्यों नहीं कहा? कुरान पाक को कीमती क्यों नहीं कहा? भारी क्यों कहा? तो आका जवाब देंगे, उमर फारूक अमजदी, ये कुरान वो है जहां रख दिया जाता है वो इस तरह भारी है कि हटाने वाले आते हैं चले जाते हैं, शोर मचाते हैं खत्म हो जाते हैं, कोशिश करते हैं निस्तो नाबूद हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले अफरा तफरी थी, कुछ लोग कुरान की आयाते करीमा में तबादले के ख्वाह थे, कह रहे थे बदल दिया जाए, इंटरफेयर कर दिया जाए। अमा औकात में रहना ये कुरान है और ये भारी है। इसके भारीपन का हाल ये है कि तुम तो उड़ जाओगे, आंधी कोई हो, कुरान जब से रखा है ता कयामे कयामत रखा रहेगा, इसका कतई कुछ बिगड़ने वाला नहीं। अब ये कुरान चाहे बढ़हरिया की जामे मस्जिद के सहन वो अलमारी में हो या कुर्बो जवार के मसाजिद में हो, मस्जिद नबवी शरीफ में हो या काबतुल्लाह शरीफ के ताक पर हो, कुरान कुरान है और अपने आप में इतना भारी है कि हटाया मिटाया नहीं जा सकता। आइए जायजा लेते हैं अहले बैते अतहार का। या रसूल अल्लाह, अहले बैते अतहार को भी आपने भारी कहा, शकलैन है ये शकलैन, मेरे आका भारी फरमा रहे हैं, ये भारी हैं तो इनके भारीपन का क्या हाल है? अब तारीख के औरात पलटो तब पता चलेगा, सीरत नबविया के का जायजा लो तब पता चलेगा, अहले बैते अतहार की हयात तय्यबा का मुताला करो तब पता चलेगा, हसनैन करीमैन खातून जन्नत और अलीउल मुर्तजा के जीवन परिचय पर स्टडी करो तब मालूमात हासिल होगी कि सुनो ये इतने भारी हैं, इतने भारी हैं कि वो कुरान जो कागजों में लिखा है वो काबा शरीफ की ताक पे रखा हुआ होगा, मगर ये कुरान मस्जिद नबवी शरीफ से मक्कतुल मुकर्रमा आएगा और मक्कतुल मुकर्रमा से मैदान कारजार मैदान नैनमा जाएगा और करबो बला की जमीन पर जब खेमा जन होगा तो चाहे यजीदी आंधी चले या अमर साद की आंधी और तूफान चले, खबरदार ये इतने भारी हैं कि वो आंधियां आएंगी मगर हुसैन का कुछ नहीं बिगड़ेगा। कल भी हुसैन अपने भारीपन का सबूत दे रहा था और आज भी बढ़हरिया के नौजवान की जबानों में अपनी बरकत और जिक्र के रस घोलकर बता रहा है कि हम कल भी भारी थे बाहयात थे, आज भी हमारी जिंदगी लोगों को लज्जत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली, नारे हुसैनी या हुसैन। लोग हुसैन आजम के गुलाम हैं और एक नारा उनके नाम का नहीं लगाना सीख पाएंगे तो 10 दिन मौलाना फारूक की तकरीर बेकार जाएगी। तवज्जो हाजिर हो, आप कैचर बने, कैच करे, मैं खूने जिगर पेश कर रहा हूँ। मैंने कभी बोलते हुए ये महसूस नहीं किया कि मेरी जान चली जाएगी, जाए चली जाए, कम से कम उस लिस्ट में नाम तो आ जाएगा कि हम जिक्र हुसैन आजम कर रहे थे। अब जब आप महफिले हुसैन आजम में है तो खाली सुनना है, गला तो मौलाना फारूक का फटेगा, खून तो ये पेश कर रहे हैं, आपको सुनना है तो सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और नारे तकबीर और रिसालत, नारे हैदरी और नारे हुसैनी लगाने में क्या परेशानी हो रही? तवज्जो हाजिर हो, खाली लोग शोर तभी मचाते हैं जब सद्दा और झंडा देख लेते हैं। हक तो ये था कि यहाँ एक सद्दा लगा दिया जाता। जी जी कल लग अब जो ताजियादार हैं वो सुन ले, कल लग जाएगा। एक झंडा इधर को गाड़ दें, दूसरा इधर को गाड़ दें, ये हमारा आलम है और आलम इस्लाम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तवल्लुद हुए तो आपकी पैदाइश के वक्त हजरत जिब्रील ने झंडा लेके हजरत जिब्रील उतर पड़े थे, झंडा लेके 3 झंडे गालिबन लाए थे अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो, एक मशरिक में गाड़ा, दूसरे को मगरिब में गाड़ा और एक को काबे की छत पर गाड़ दिया। क्या मतलब था? मतलब ये था कि जो पैदा हो रहे हैं वो काबे में पैदा, मक्का में पैदा हो रहे हैं और इनकी हुकूमत का हाल ये होगा कि मशरिक से मगरिब तक
पूरब से पश्चिम तक इनकी हुकूमत होगी। बाखुदा कायनात की कौन सी शय है, दुनिया व जहान की कौन सी चीज है जो मुस्तफा की नबूवत से आशना नहीं है और मुस्तफा के फैजान से फैज़याब नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत के दिलबंद की बात कर रहा हूँ। तवज्जो हाजिर होगा तो आप समझेंगे। और इंशाअल्लाहुर रहमान अमजदी की आदत है कि समझाने की महारत रखता है। एक अलग बात है कि दूसरी बात बताने के फिक्र में किसी बात की पहलू छूट जाए तो अलग मसला है, लेकिन अगर कोई उस पर एतराज वारिद करे तो मैं इतना देख रेख के आता हूं कि बता सकूं। तवज्जो हाजिर हो तो मैं अर्ज करूंगा और आपको बताना चाहूंगा, ये वो जमात है जिसकी तहारत के लिए कुरान अलल ऐलान बाबागे दोहल ऐलान कर रहा है, अलल ऐलान फरमा रहा है, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैती युतहिरुकुम ततहीरा। और अल्लाह चाहता है कि आपके अहले बैते अतहार को पाको मुनज़्ज़ा कर दे, खूब खूब सुथरा कर दे। सुथरापन तो यही है। अब ठहरिए, गुनाह भी निजासत है, गुनाह भी निजासत है। निजासत तो निजासत है ही, गंदगी भी निजासत है ना। और इस जिंदगी को गुजारने के बाद जब उखरवी जिंदगी मैसर आएगी इंतकाल के बाद, तो आमाल नामे में जो अच्छा होगा वो तो अच्छे वाले पलड़े पर रख दिया, मीजान के पलड़े पे रख दिया जाएगा। जो बेकार होगा बड़ा सख्त मुहासबा होगा, उसका जवाब देते हुए हालत बिगड़ जाएगी। ये भी एक रिज्स है, नापाकी है। अब बताना चाहूंगा, इन तीनों चीजों से मेरे अल्लाह ने अहले बैत अतहार को पाक कर दिया। निजासत दुनियावी से भी पाक कर दिया, गुनाह से भी पाक कर दिया, और आखिरत में अजाब मिले इससे भी पाक कर दिया। इंशाअल्लाह मौका फराहम हुआ तो मैं इसकी वजाहत और आपको बता देना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा के नाम पाक की बरकत हासिल करने का मूड बनाया था मैंने। अब मैं चाहूंगा कि आप भी इसकी लज्जतें लूटें। हजरते फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो बावकार खातून है कि मेरे आका फरमाते, फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे बदन का हिस्सा है। कुछ लोगों ने तर्जमा किया कि मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे जिगर का हिस्सा। अब बात समझ में आ रही है कि अगर बदन से एक हिस्सा निकाल दिया जाए, मौलाना उमर फारूक अमजदी का एक बाजू काट लिया जाए, तो बताइए ना इनके बॉडी को तकलीफ होगी कि नहीं? बेशक क्लियर कट है। आकिल लोग समझ रहे हैं कि तकलीफ होगी। जाहिर है जब फातिमा को कोई तकलीफ देगा तो नबी को तकलीफ होगी, इसलिए कि नबी ने अपने जिगर का टुकड़ा कहा है, अपने बदन का हिस्सा कहा है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए मेरे आका फरमाते, जमीन की सारी औरतों की सरदारा है खातून जन्नत। क्या है? सरदारा है। जन्नत में सारी औरतों की भी सरदारा है। जमीन पर भी फातिमा ज़हरा के मद्दे मुकाबिल कोई खातून नहीं है, और आसमान पर भी हत्ता के जन्नत में भी कोई खातून फातिमा ज़हरा के मद्दे मुकाबिल नहीं है। मेरी माँ और बहनों तवज्जो देना, तुम्हें कुछ नहीं आता है तो किसी हाफिज जी को बुला के फातिहा उतिहा नहीं करा पाती हो, खातून जन्नत के नाम पता नहीं कुछ लोगों ने मिजाज बना लिया। वो क्या क्या पढ़ते हैं भाई, वो सैयदा बीबी की कहानी पढ़ते हैं। वो एक 4 बरक 6 बरक 8 बरक की किताब होती है और ना जाने कौन सी कहानी पढ़ते हैं, और क्या सुनती क्या सुनाती है। ऐसी मन्नतें मत माना करो। बात अगर आ जाती है तो मैं कहे बगैर रुक नहीं पाता हूँ, कह दूं। ये बात इस मौके की नहीं है, इंशाअल्लाह मैं इसे कल कहूंगा कि खातून जन्नत ने भी मन्नत मानी थी, और वो मन्नत जो जायज हो उसका पूरा करना वाजिब होता है। कुछ लोग मुहर्रमुल हराम के मौके पर ताजियादारी के साथ साथ वो क्या आएक पैक बनाते हैं, उसकी भी मन्नतें मान लेते हैं, जबकि शरीयत में इसकी कोई असर नहीं है और उसको कंपलसरी समझते हैं। बगैर जूता चप्पल के पता नहीं कहां कहां दौड़ाते हैं अपना वो अनोखा लाल
जिसे मोहब्बत से पाला था, अब उसकी जूतियां छीन कर उसे यूं ही दौड़ा रहे हैं रोडों पर। मैं कहना चाहता हूं, अगर हुसैन से मोहब्बत है तो कुरान पढ़ाए होते, हुसैन से मोहब्बत है तो अहादीस नबविया का मुताला कराए होते, हुसैन से मोहब्बत है तो हुसैन आजम के जीवन परिचय की स्टडी करा लिया होता, हुसैन आजम से मोहब्बत है तो हुसैन की जिंदगी पढ़ के हुसैन की सुन्नतों पर अमल कर लेता। जवानी के बाद शादियां हो जाती हैं और ढेरपन से गुजर के बुढ़ापे में आ जाता है, तौफीक नहीं होती है कि चेहरे पर दाढ़ी रख ले। तुम कहते हो हम हुसैन के नाम पर फेक बना रहे हैं, अपने औकात में आओ, अपने आप को संभालो। तुम वो करो जो इस्लाम ने दिया है, तुम उस पर अमल करो जो इस्लाम ने अता किया है। दाढ़ी वो वाजिब है, तमाम अंबिया किराम की सुन्नत है। मोहब्बत है हुसैन से तो चेहरे पर दाढ़ी जैसी सुन्नत सजाओ, तब देखो कैसी बहारें आती हैं। मैंने दाढ़ी रखने वाले के निकाब का एक नुक्ता पढ़ा है कि जिसके चेहरे पर दाढ़ी होती है खुदा उसे नामर्दी से महसूस फरमाता है।